ये वो जगह है जहां पर मारिया का कत्ल हुआ। इस कमरे के अंदर उसके साथ खून की होली खेली गई। कातिल भाई भी था, बाप भी था, वीडियो बनाने वाला भाई भी था, और फिर उसके साथ साथ उसकी बीवी भी थी। वो सब लोग यहाँ पर मौजूद थे। बहुत अच्छी लड़की थी, क्योंकि ये तो आज तक हमारे घर में भी नहीं आती थी, अपने घर से बाहर भी नहीं आती थी। बाज़ जगहों पर सुनने में आ रहा है, मुबैना तौर पर ये इल्ज़ाम लग रहा है, ये कोई बात साबितशुदा नहीं है, कि जी उसका भाई और बाप शायद उसके साथ गलत थे, उस चीज़ को छुपाने के लिए उन्होंने उसको मार दिया। इस तरह की बातें भी सुनने को मिल रही हैं आप लोगों को? जी जी बिल्कुल मिल रही है, ऐसे तो लोग बोल रहे हैं, मोहल्ले वाले भी बोल रहे हैं। हाँ, हमको तो फिर किसको हम कैसे रोक सकते हैं, किसको रोका भी नहीं ना जाता। तो देखो इतना सभी लोग गाली निकालता, बहरहाल इन्होंने अच्छा नहीं किया है। मारिया को क्यों कत्ल किया होगा उन्होंने? ये वजह तो उनसे पूछनी चाहिए। तो ना हमारी नज़रों में तो मारिया अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी लड़की थी, और हर रमज़ान में पूरे रोज़े रखती थी। ऐसी लड़की थी नहीं या जैसे कि होती है जैसे लड़कियाँ, ऐसी नहीं थी। उसका वालिद, उसकी भाभी, उसके दोनों भाई, सब जो हैं वो गिरफ्तार हैं, और वो उनकी तफ्तीश हो रही है। अब घर में कोई है नहीं, लेकिन उस लड़की पर अब मामला कुछ जो सामने आ रहा है, जो हमें अब तक पता चला है कि जिसने वीडियो बनाई है वो इल्ज़ाम लगा रहा है अपने बाप और कत्ल करने वाले भाई पे कि मुबैना तौर पर हो सकता है वो गलत हों, और जिन्होंने कत्ल किया है, जो बाप और भाई, वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं वीडियो वाले भाई पे कि हो सकता है वो उससे कुछ गलत वो करता हो, तो इस वजह से उन्होंने उसको मार दिया। इस घर में इतना बड़ा जुल्म वो हुआ है कि एक बाप और दो भाइयों और भाभी की मौजूदगी में एक जवान साला लड़की को बड़ी बेरहमी से कत्ल किया गया, और उसके कत्ल को फिल्माया गया। अच्छा, उस टाइम इस कमरे ਚ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ। ਅੱਛਾ। ਮੱਠੇ ਰੋਣ ਡੇ ਤੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਸਾਹ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗਲਾਸ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਦੌਰਾ ਆ ਗਿਆ ਕੁੜੀ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ, ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਚਲੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਹ ਹੈ। ਮੈਂ ਗਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਜੇਠ ਪਰਾ ਉਹਨੂੰ ਕੈਰੀ ਡੱਬਾ ਕੱਢਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਬੇਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੈ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਾਂਤ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਪਿੱਟਦੇ ਰਹੇ, ਇੱਧਰ ਆ ਬਹਿ ਕੇ ਰਾਤ ਕੱਢੀ ਸਾਰੀ। ਸਵੇਰ 2 ਵਜੇ ਨੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕਰਾਇਆ। ਜਨਾਜ਼ਾ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਮਾਮੂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਮਾਮੂ ਸੀ ਸਕਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਬੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਤੇ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਸ਼ਿਵਾਜ ਨੇ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਸੀ ਛੋਟੀ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਸੱਚੀ ਦੱਸ ਰਹੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ। ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮਾਰੀਆ ਦਾ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ? ਪਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮਾਰੀਆ? ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਅਸੀਂ ਆ ਮੇਰਾ ਦੇਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚੱਲੇ ਆ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਹੈ ਕੌਣ, ਕੀ ਬਹੁਤੀ ਡਾਊਨ ਹੈ ਤੇ ਗੱਡੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਚਲੇ। ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਪਿੱਛਾ ਨੂੰ ਆ ਗਏ। ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਤੇ ਕੁੜੀ 'ਚ ਕੋਈ ਸਾਹ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਕੈਰੀ ਡੱਬੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਬਸ। ਮਾਰੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਮਾਰੀਆ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਚਾਚੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੇ, ਮਾਰੀਆ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਬੱਚੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬੱਚੀ ਸੀਗੀ। ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀ ਉਹ ਕਦੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਕਦੇ ਗੈਰ ਨਿਗਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਕਦੇ ਆ ਬੂਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦੇ, ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਚਲਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੀ ਖੁਸ਼ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਚਲੋ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਸੀ। ਉੱਦਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚੰਗੇ ਸੀ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ 5 ਟਾਈਮ, ਪਿਓ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੇ ਸੀ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਿਓ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਟੁਰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਟੁਰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਥਾਣੇ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੀ ਟੁਰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਜਬੂਰ ਸੀਗਾ। बहरहाल लेकिन ये जी तुम ताई लगते हो मारिया दे घर के बिल्कुल सामने इनका घर है, और ये रोती हुई, अभी हम प्रोग्राम कर रहे थे रिकॉर्ड, तो रोती हुई आई हैं। उस मारिया के लिए दर्द है इनका। मारिया का कोई कब पता लगा मोहल्ले में कि उसको जब फोत हुई तो उस वक्त कुछ पता लगा कि क्या मामला? जी नहीं पता चला। रात को तकरीबन इन्होंने कोई 1 या 2 बजे के करीब इन्होंने बोला कि मारिया जो है फौत हो गई है। तो उनसे पूछा कि किस लिए फौत हुई है। इन्होंने यही बोला है कि इसने रोज़ा रखा हुआ था, पानी पिया
उसकी वजह से हैजा हुआ है, तो ये इसका डेथ हो गया। उस वक्त कौन कौन था उस वक्त? शहबाज जिसने वीडियो बनाई वो भी साथ ही था? जी जी, वो तीनों ही थे साथ में, पूरे जितने भी इस घर में रहते थे ना, वो सभी अफराद थे। तो जिसने वीडियो बनाई शहबाज, उसने भी नहीं बताया किसी को किसको कत्ल किया मेरे भाई ने? जी नहीं, उसने भी नहीं बताया, क्योंकि उसने फिर बाद में बताया जब 3 दिन पूरे हो चुके हैं ना, उसके बाद ये पता चलना शुरू हुआ कि इन लोगों ने कत्ल कर दिया। वो कमरा कौन सा था? ये वाला कमरा था या ये वाला था? ये वाला कमरा। ये वाला कमरा था? जी बिल्कुल। ये जिस रात को मारते रहे उसको या कत्ल करते रहे, किसी को कोई आवाज वगैरह? जी नहीं, किसी को भी नहीं पता चला। ये पहली बात तो ये है, हमारे घर है ये, हम भी नहीं इधर आते थे, यानी कि ये किसी को आने नहीं देते थे। अच्छा। हम भी नहीं इतना आते जाते थे, क्योंकि जब एक आदमी किसी को बोल दे नहीं आना है तो फिर नहीं आना है ना, फिर जरूरी किसी के घर में जाना, किसी के घर जाना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल जी। अच्छा, तो ये मामला है कि आपको जब पता चला उस वक्त 3 दिन गुजर चुके थे? जी जी बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद फिर पुलिस आई, फिर सारे मामला सामने आए? जी जी, पुलिस जो जब आई है तो वो फैसल को लेकर गई है, फिर पूरा जितना भी मोहल्ले वाले हैं सबको फिर पता चल गया था कि ये मामला है, क्योंकि फिर जो सतार था उसने भी बोला ये है कि मैंने ही कत्ल करवाई है, मैंने ही मरवाया। बाप ने? जी जी। तो क्या वजह हो सकती है? आपको क्या लगता है कि क्या वो घर अब से ये बाहर देखिए नहीं नाजरीन, ये उसका मारिया का रिश्तेदार भी है और घर के बिल्कुल साथ घर है इसका। ये भी बता रहा है कि गली मोहल्ले में या ख़ानदान में मारिया की जो रेप्यूट थी बहुत अच्छी थी, यानी कि उसके बारे में जो किरदार पे इल्ज़ाम लगाकर उसको जो कत्ल किया गया बड़ी बेरहमी से, वो गलत किया गया है, जुल्म हुआ उस लड़की पर, वो किरदार की अच्छी थी। बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर भी वायरल हैं, बहुत सारे सवालात भी हैं, बहुत सारी कहानियाँ भी लोग बता रहे हैं। क्या एक्चुअल सिचुएशन है, इन्वेस्टिगेशन में क्या चीज़ें सामने है, इसी वाले से हम बात करेंगे। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि जो मर्डर हुई है उसको जो कत्ल कर रहा है भाई, उसने कुछ उसके साथ गलत किया था या उसको छुपाने के लिए जो मामला थे, लेकिन जो भी अब तक की एक्चुअल इंटेरोगेशन उसके हवाले से हम बात करेंगे। जी बात साहब, बताइएगा कि मामला जो मारिया के केस के हवाले से है, इसमें क्या चीज़ें अब तक सामने आई हैं? जो वीडियो वायरल हुई उसके बाद काफ़ी लोग जो हैं वो इस चीज़ में है कि क्या असल हुआ क्या था? जी थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। आपने जैसे खुद ही बताया कि ये एक बड़ा अफसोसनाक इंसिडेंट था जिसने बहुत ज़्यादा अटेंशन ग्रैब की, और हर बंदा जो परेशान था कि जो खूनी रिश्ते हैं क्या वो इतने भी ज़ालिम हो सकते हैं कि एक वालिद और एक भाई जो है वो अपनी बेटी का या बहन का इस तरह मर्डर कर सकते हैं। यकीनन एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है जिसने ना सिर्फ पूरी सोसाइटी को झंझोड़ दिया है बल्कि हम सब के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया भी है कि सोसाइटी एज ए माशरा हम किस जानब जा रहे हैं कि जहाँ पे इतनी सफाकियत और इतनी खून में सफ़ेदी आ जाती है। ये उसकी एग्ज़ाम्पल है। अब जहाँ तक आपने कहा कि यहाँ पर बड़ी मुतज़ाद बातें सामने आई, जो बेसिकली कत्ल कर रहे थे और जो उस वक्त वीडियो बनाने वाले लोग हैं उनका किरदार क्या था, यहाँ पर मैं उससे पहले आगे लेकर जाने से पहले यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि जब ये इंसिडेंट 17 और 18 की दरमियानी रात को हुआ तो उस वक्त ये कोई चीज़ पुलिस को रिपोर्ट नहीं हुई। हमें 24 तारीख को ये चीज़ रिपोर्ट हुई और फिर एक वीडियो सामने आ गई। जब ये वीडियो सामने आई तो फिर जो वीडियो बनाने वाला भाई है शहबाज, मारिया का मकतूला का जो भाई है, जो वीडियो फिल्म कर रहा है और उसमें उसकी बेगम भी नज़र आ रहे हैं, फिर इन्होंने आकर कोशिश की कि ये इस पर्चे के अंदर खुद मुद्दई बन जाएं और इस केस को लेकर चलें ताकि ना सिर्फ इनको क्लीन चिट मिल जाए बल्कि शायद ये कोई लेटर स्टेज के ऊपर केस की जो फेट है उसके ऊपर भी इनका कोई किरदार हो सकता था। कि जब वीडियो सामने आई तो फिर पुलिस ने एज ए इंस्टीट्यूशन ये हमने सोची कि ये क्राइम अगेंस्ट एन इंडिविजुअल नहीं है, ये क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी है, तो इसमें स्टेट अपना रोल खुद प्ले करेगी और हम उसके अंदर कंप्लेनेंट बने। पहले शहबाज था, उसने अपने भाई और वालिद पे इल्ज़ाम लगाया कि खुदा न खास्ता उनके कोई ऐसे गलत मरासिम थे जिसको छुपाने के लिए उन्होंने ये काम किया। जो कातिल है वो कहते हैं कि जनाब जो ये हमें इल्ज़ाम लगा रहा है वो ऐसे है। तो ये यकीनन ये एक ऐसे इल्ज़ामात हैं जिनकी तस्दीक के लिए हमें ऐसा एविडेंस चाहिए जिसको कोई बंदा कल रिजेक्ट ना कर सके। अच्छा, 17 को जब इन्होंने मार दिया तो इन्होंने क्या तौसर दिया लोगों को? दफनाने तक का, दफना भी दी गई लड़की। शहबाज जो है मुलज़म, वो उनकी डेड बॉडी को लेकर आया और उन्होंने ये रंग देने की कोशिश की कि शी इज़ नॉट फीलिंग वेल, तबीयत ठीक नहीं है, हमें हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं।
تو یہاں وہ ہاسپٹل تک لے کر آئے ہیں, یہاں سے ایک چکر لگا کے پھر واپس لے کے جائے ہیں, تاکہ انہوں نے اپنے گاؤں میں, اپنے علاقے میں یہ رنگ دینے کی کوشش کی ہے کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی, ہم ہاسپٹل بھی لے کے گئے ہیں لیکن یہ بچ نہیں سکی. اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ اس کو دفنا دیا. لیکن چونکہ یہ ایک ایسی ڈیتھ تھی اور اچانک ڈیتھ تھی جو پورے محلے کے اندر اس پہ چہم گوئیاں شروع ہو گئیں کہ کیا ہوا ہے, اچانک ہوا ہے, کیا مسئلہ ہوا ہے. تو آپ کو پتہ ہے جو ہمارا رورل سیٹ اپ ہے وہاں چیزیں چھپنی مشکل ہوتی ہیں. تو آہستہ آہستہ یہ چیز جو ہے وہ ڈائیولج ہونا شروع ہوگی, اور پھر ان کی فیملی کے اندر سے لوگوں نے ڈیفینیٹلی باہر بات چیت کی. تو یہ بات سامنے آ گئی سوسائٹی کے اندر اور اس گاؤں میں کہ یہاں پہ کوئی چیز جو ہے وہ ان نیچرل ہوئی ہے, یہاں پہ کوئی چیز ایسا شاید کوئی وقوع ہوا ہے جس کو چھپانے کی کوشش کی گئی ہے. اچھا, ویڈیو اسی انٹروگیشن کے دوران سامنے آئی یا پھر کہ پہلے کسی نے پولیس کو بھیج دی یا وائرل کر دی, کیا معاملہ تھا؟ ویڈیو تو بنائی تو اس کے بھائی نے. یہ دیکھیں یہ چیزیں سائملٹینیسلی ہو رہی تھی اس وقت. یہ کہنا جی کہ اگر ویڈیو سامنے پہلے آ گئی تھی اور بعد میں کارروائی ہوئی, اٹ از ٹو ارلی ٹو سے, اور ہمیں اس پہ یہ کمنٹ کرنا مناسب نہیں ہے. یہ چیزیں سائملٹینیسلی چل رہی تھی کیونکہ علاقے میں لوگوں کو پتہ تھا کہ یہاں پہ کچھ چیز ہوئی ہے. پولیس کو بھی اس کی انفارمیشن جب ہمیں ملی تو ہم نے پوچھ گچھ کرنا شروع کر دی. تو یہ چیزیں سائملٹینیسلی تھیں. تو اسی ہی دوران یہ ویڈیو بھی منظر عام پر آ گئی جس کو ہم پھر آگے ہم نے پروسیڈ کی. ڈیفینیٹلی وہ تو ایک جو باپ بیٹھا ہوا ہے اور بیٹا جو قتل کر رہا ہے وہ تو سامنے نظر بھی آ رہا ہے نا. تو اس میں ایک وجوہات کیا ہیں آپ لوگوں نے جس طریقے سے انویسٹیگیشن کی ہے اس چیزوں کو, کہ اب ایک وجہ اس میں تھوڑا سا مجھے اب لوگوں کا کیا کہنا ہے, اب اتنا تھوڑا چیز اب تک کی سچویشن کچھ پتہ لگا کہ وجہ کیا تھی یہ نہیں ہم بتا سکتے. ہمیں بیسیکلی یہ تھا کہ جو قاتل ہیں انہوں نے جو لڑکی کا بنی ہے وہ انہوں نے لڑکی کے کریکٹر کو کوشچن کی ہے. ملزمان سارے جیل میں, اور آپ سے جو پروگرام کرنے کا مقصد یہاں پہ قطعاً اپنی تشہیر یا کسی کی تشہیر کرنا نہیں ہے. یہ ڈیفینیٹلی چونکہ یہ ایک ایسا سنسیشنل ایشو تھا کہ جس پہ لوگوں کے بہت سارے سوالات اور بہت سارے ان کے ذہن میں کوشچن ارائز ہوتے ہیں, بہت سارے شکوک و شبہات ہوتے ہیں. تو ہم آپ کے چینل کے ذریعے آپ کے ذریعے یہ بات کلیئر کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی بھی بندہ لاء سے ابو نہیں ہے. جس نے یہ جرم کیا ہے پوری طاقت کے ساتھ قانون حرکت میں آیا ہے. ہم تمام ایویڈنسز کی بنیاد پر, شواہد کی بنیاد پر کیس کو آگے لے کر چلیں گے, اور آپ لوگوں سے یہ پبلک سے یہ کمٹمنٹ کرتے ہیں کہ جنہوں نے یہ جرم کیا ہے انشاءاللہ ان کو سزا دیں.